Good morning, all. On behalf of Alumni Committee, I am pleased to welcome Professor Praveen Garg sir, all the faculty members, and dear students in this series of Alumni Talk being held under the guidance of our esteemed principal sir and Alumni Committee. First of all, I would request Dr. Archana ma'am, convener of Alumni Committee, to welcome our alumnus on behalf of SSN College. Over to Archana ma'am. Thank you so much, Dr. Vijender. Good morning to all. A very warm good morning and welcome to all. We are really happy about the homecoming of our own child, Bhumika Sharma ji, who is an assistant professor also and associated with very attractive names like Doordarshan and All India Radio. And I congratulate and thank the Department of Physics, in particular Professor Namrata and Dr. Vijender, for having put up this event for everybody. And we are very eager to listen to her. She's coming across as a very warm-hearted and good girl in all the ways, academically also, and very seasoned and poised girl. And we are very thankful to our encouraging and dynamic principal, Professor Praveen Garg sir, who encourages all good things which are taking the institution to great heights. Thank you, sir, for supporting. And now, not taking much time between the audience and the eminent speaker, I would like to say our alumni are our pride. These alumni are the fruits of our hard work, and when they make it big for themselves, they make it big for their alma mater also. So congratulations, and I'm very sure that the session will be fruitful, and she is appearing to be a very good role model for all the students, and we all learn from each other. Even we learn from our alumni and from each other. So thank you, and wish you all a great session. Over to you, Dr. Vijender. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would request our young and dynamic principal, Professor Praveen Garg sir, to say a few words. Garg sir. Thank you, Vijender ji. It is indeed a great pleasure again that Alumni Committee under the leadership of Archana Madam and the entire committee, Namrata Madam, and today's coordinator, Vijender ji, and her entire team has organized this very special and fruitful webinar. If you can see, and the invitation to Bhumika is not only part of academics only. She is not only in academics as an assistant professor in Sonipat, but a dynamic and very, I should say, branded name in the mid of media for working in All India Radio, Doordarshan, Jockey, and such kind of names are joined with them. And as Namrata Madam and Vijender ji told me yesterday that in her college life also, she was very active and dynamic, and she was speaking very politely. So with these words, we shall be able to listen a great journey that Bhavna ji has, Bhumika has taken from her college life to her, I should say, employed life, or as a lecturer in college, as a jockey, or All India Radio पर काम करना, Doordarshan. And moreover, I think she was, even Bhumika will tell where she is working. Namrata Madam was telling in some programs also, she is background words or background speeches are also there from her. As Archana Madam has already told us, so that her journey will be a great inspiration to our young students, dynamic or fresh students,
not only academics, but in other fields also. So I wish she will detail all parts of her journey, which is always tough. We should not take it very light for any success. So she has achieved a great success, and we are proud of that she was our student. She was not only a student of physics department, she was student of Swami Shraddhanand College. As Archana madam has again and again said, so we all are proud of her, and we benefited mutually. So she is not only the fruit of our college, we are also getting respect as a fruit of her dynamic and hard work that she performed. So we are also getting some fruits of her hard work. With these words, I welcome again Bhumika, that she spared some of her precious time to enlighten, guide, advise her wise directions to our students. And moreover, I will also request her if she can give some suggestions to improve in the college for the students, etc. Those will be also welcomed. With these words, again giving my heartiest wishes to Bhumika ji, that she is going to deliver her talk. I will request Bijender ji to proceed further. Thank you, Bijender ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I will request Professor Vinod Notial, sir, to welcome Bhumika on behalf of Physics Department. Thank you, Vijender. Thank you so much. Good morning to everyone. It is a pleasure to welcome our student to our college as a speaker. It is the greatest honor for a teacher. I can say about myself that we are having our student, one of the brightest students, to present a talk to us. And I will talk a bit about Bhumika. I will talk about Ranjan sir, आपका audio on है. Bhumika was very bright student when she was in the college, and I will say that she was among top 5 students which I have taught in my whole career. She had great learning spirit, seeking spirit. Every time, even in the labs where students take it easy, she was always asking questions about one even the experiments which were not the part of the syllabus. So I had very high hopes when she was a student, and today I am very happy to see that she has achieved all heights I had thought of achieving her. And although whole class means, I suppose she was there in 2013, and their class was one of the exceptional classes. I mean, all students were very bright, which rarely happens. Otherwise, 10% are very bright. That way it goes. But that class was really bright, and I found Bhumika brightest one. And I request all physics students in particular of our college that they be in touch with Bhumika. She can guide in shaping their careers also, particularly girls. So thank you, Bhumika. Thank you for accepting this invitation. And again, on the behalf of the department, I welcome you to the college. And if when Corona is over, I wish that you visit the college and meet students personally, so that they can get encouraged through your kind words. So thank you for accepting the invitation, and welcome for the talk. Thank you, Bhumika. Thank you, sir. Now, with the permission of Professor Praveen Garg, sir, I would like to officially start the proceedings. First of all, I will introduce formally today's alumnus Bhumika Sharma to our current students so that they can know about their seniors. She completed her graduation in physics honors in 2010 to 2013 batch.
She has completed her MSc from Hindu College Sonipat in 2015. She is pursuing her PhD from Lovely Professional University, Punjab. Currently, she is Assistant Professor Physics in GVM Girls College Sonipat since July 2015. Apart from that academic achievement, she is locutor at All India Radio since 2016 and associated with Doordarshan as an anchor since 2018. She has received many awards such as Rashtriya Gaurav Award by Women Power Society Delhi, Sonipat Ratan by Sarthi Jan Seva Charitable Trust, Women of Worth Award by Pinkishi Foundation, Excellence Award by District Administration Sonipat, honored by Governor, CM and various ministers for social welfare, Women Pride Award by Amar Ujala, Hame Naaz Hai Betiyon Par Award by Dainik Jagran, Appreciation Award by Department of Haryana Police for assistance in 112 helpline. 112 is an emergency response support system helpline. I think Bhumika has given her overvoice in that emergency service and many more. I welcome Bhumika on behalf of SSN College. Over to Bhumika. थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण गर्ग सर, प्रिंसिपल सर, देवी भारद्वाज सर, शिवा मैम, विनोद नोटियाल सर, विजेंद्र दहिया सर एंड मैनी मोर, रंजन सर, और भी जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। और जो मेरे जूनियर्स यहाँ पर हैं उन सभी को का मैं एक बार स्वागत भी करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने कॉलेज में जहाँ पर आप एक बीज के रूप में गए थे और वहां पर आज आपको फल कहकर, फ्रूट कहकर पुकारा जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तो अपने आप में ये इस फीलिंग के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अभी सर ने बहुत कुछ बतलाया मेरे बारे में, और आज का जो टॉपिक मुझे एलुमनाई मीट के लिए एक वक्तव्य के लिए दिया गया, दैट इज रोल ऑफ थॉट प्रोसेस इन अ सक्सेसफुल लाइफ। सो विदाउट एनी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, मैं सीधा टॉपिक पर ही आती हूँ, रोल ऑफ थॉट प्रोसेस। बीच बीच में मैं एनेक्डोट्स अपने जिक्र करती रहूंगी, कैसे मुझे फायदा मिला थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने से। सबसे पहले तो 2010 से पहले जो स्कूलिंग हुई वो हिंदू गर्ल्स स्कूल से हुई थी, सोनीपत में गर्ल्स स्कूल था। तो जब एक सिंसियर जेस्चर में आप रहते हैं और गर्ल्स स्कूल से जब एसएसएन कॉलेज में मेरा आना हुआ, तो को एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ा एक बोझ दिमाग में था कि को एजुकेशन में जाना है। और उसके बाद जैसा विनोद नोटियाल सर ने अभी बताया कि ये क्लास एक्सेप्शनल क्लास थी, और सच में वी आर द लकी वन कि हमारी क्लास सच में एक्सेप्शनल थी। बॉयज गर्ल्स सब इतना अच्छे से रहते थे, घुले मिले रहते थे, और कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हमारी क्लास में नहीं थे। सभी हेल्दी रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स इतनी अच्छी होती थी, नोट शेयर करना, रीडिंग रूम में बैठना, लैब में काम करना, कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग फैक्टर हमारे बैच में नहीं था। 2010 to 13 सभी इतने सिंसियर थे। लैब में जब हम होते थे, शक्ति सर शायद अभी यहाँ पर नहीं है, उन और राणा सर हुआ करते थे वहां पर लैब में जो थे, तो हमने उनका बहुत दिमाग खाया है। कुछ भी होता था, हम हर छोटी से छोटी चीज को हम इतना बड़ा बना के देखते थे कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, और उन चीजों ने लाइफ में बहुत पे किया। तो शुरुआत 2010 से 13 में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में, सही मायने में स्कूल के बाद, कि फिजिक्स क्या है और क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए और हमारी लाइफ में ये क्या चेंजेस ला सकती है। तो इसका जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो जाता है टीचर्स को, कि उन्होंने फिजिक्स को एज अ करियर ऑप्शन, क्योंकि जनरली क्या होता था उस टाइम पर, जो क्रेज था ग्रेजुएशन के बाद, अब जैसे यूपीएससी का क्रेज है, उस टाइम पर सीजीएल, एसएससी इनका क्रेज होता था, बैंक पीओ का क्रेज होता था, तो सभी इसी तरफ निकल लेते थे। लेकिन हमारे बैच से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में ही करियर बनाने की सोची। उसका कारण ये था कि जो थॉट प्रोसेस हमें मिला था कि हमें ये सोचना है कि इस सब्जेक्ट पर हमने 3 साल इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 3 साल हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा हमारे टीचर्स ने हमें स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में सिखाया, और उन 3 सालों में जो उन्होंने नींव रखी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा हेलीपैड उन्होंने तैयार कर दिया था कि कभी भी इस सब्जेक्ट ने हमें डराया नहीं। हम हमेशा, जब भी मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो कोई भी सब्जेक्ट में उठाती थी, मुझे उसी टीचर का चेहरा वैसे ही पढ़ाते हुए आज भी याद आता है, कैसे वो बोर्ड पर लिख रहे होते थे, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन की वो चीजें।
हर छोटी से छोटी बात, जो भी टॉपिक क्लास में चल रहा होता था, वो हमेशा, मतलब आज भी जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है, हाँ नोटियाल सर ने ऐसे बताया था। एक सुशीला मैम भी थे, वो हमें ऑप्टिक्स पढ़ाती थी, हाँ उन्होंने इंटरफेरेंस हमें ऐसे बताया था। मोनिका मैम ने हमें पढ़ाया मैथमेटिकल फिजिक्स, ट्रांसफॉर्म्स बेस्ट उन्होंने हमें पढ़ाई थी। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं। बेसिकली फिजिक्स हमें जो श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ने को मिली, वो थी जो लाइफ से रिलेटेड, जैसे हम फील करते हैं, कहते हैं कि सारा यूनिवर्स हमारे अंदर है। वो डिपेंड करता है कि हम उसे फील कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। और फिजिक्स तो अपने आप में ही इस पूरी दुनिया की एक ये कह सकते हैं क्रक्स है, एक हवन कुंड है, जिसके अंदर आप उसकी महक ले सकते हैं कि हाँ फिजिक्स से ही ये हुआ है, फिजिक्स से वो हुआ है। हर एक छोटी से छोटी चीज, हर चीज, जो भी लॉ ऑफ नेचर है, सब कुछ फिजिक्स के अंदर है। वो हमने उन 3 सालों में मैंने बखूबी सीखा। उसके बाद की जो जर्नी रही 2013 से 15, उस टाइम पर मास्टर्स में फिर से यही चीज की आप की ब्लेसिंग्स जो लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि आपको टीचर्स कैसे मिल रहे हैं, फिर से फ्रेंड्स कैसे मिल रहे हैं, वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही। उसके बाद 2016 में क्योंकि मैं नेशनल लेवल डिबेटर हो गई थी, जिस टाइम पे 2013 से 15 यूथ फेस्टिवल्स के थ्रू जम्मू में उस साल नेशनल हुआ था, तो डिबेटर के रूप में वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहां से आकाशवाणी के लिए सिलेक्शन हुआ। तो जो एक मोटिवेशन की बात है वो ये है कि 2010 से 13 और 13 से 15 वाला जो पीरियड, जो 5 साल थे, इन 5 सालों में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आती थी तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे जीतना है, मुझे हारना है, मैं पार्टिसिपेट करती थी। और एक बेस्ट चीज मैं बताती हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ा डर था कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। डीयू में उन दिनों एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन हुआ था, और उससे जस्ट पहले डॉक्टर विनोद नोटियाल सर की क्लास में सर ने कहा था कि हर बच्चे को टॉपिक बोर्ड पे आकर एक्सप्लेन करना है फुल्ली इन इंग्लिश। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग दिन था कि आज कैसे बोला जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करके शीशे के सामने, छोटा सा टॉपिक था ईएम वेव्स का, और इतनी प्रैक्टिस करके मैं पहुंची थी, लेकिन क्लास में एक्सप्लेन हुआ। उसके बाद नोटिस बोर्ड पे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटिशन देखा, मैंने सोचा कि ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। दौलत राम कॉलेज में वो कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरी पोजीशन कोई नहीं आई थी, लेकिन वहां पर ये देखा कि बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जा सकती है। और उसके बाद जब 13 to 15 वाला फेज आया यूथ फेस्टिवल्स में, तो वो एक जो थ्रेशोल्ड वहां से मिला था दौलत राम कॉलेज से, वहां का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ काम आया कि 2013, 2014 और 15, 3 साल 3 बार फेस्टिवल हुआ, एक फोक फेस्ट और 2 बार यूथ फेस्टिवल। इनमें सिंपोजियम, डिबेट और पोएट्री। किसी को भी फर्स्ट, अगर मैं वहां पर थी सेकंड ईयर, तो ये हो गया था कि भूमिका है तो फर्स्ट पोजीशन नहीं आएगी। उस एक कंपटीशन ने मुझे इतना कुछ सिखाया था, और जो कमी पता चली कि मेरे अंदर ये कमी है, वो उस क्लासरूम से पता चली जहां पर विनोद नोटियाल सर ने कहा कि सेमिनार देना है। सो कभी भी क्लासरूम में नेवर मिस द क्लासेस। जिस भी क्लास में आप बैठे होते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो लाइफ में आपको उस टाइम नहीं पता होता कि आज ये चीज काम आने वाली है, लेकिन लेटर ऑन वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं वो चीजें। 13 to 15 का जो पीरियड रहा, उसमें यूथ फेस्टिवल्स के थ्रू मुझे एक्सपोजर मिला। उसके बाद आकाशवाणी के लिए सिलेक्शन हुआ पहले, फिर 2016 में ट्रेनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो पर, और ट्रेनिंग के बाद मैंने जर्नलिज्म किया 2 साल, 16 to 18। तो 16 to 18 का, क्योंकि डीडी के लिए कंडीशन है कि आपका जर्नलिज्म कंप्लीट होना चाहिए, तो प्रसार भारती में ऑफिशियली रिक्रूट होने के लिए फिर मैंने जर्नलिज्म किया 16 to 18 के पीरियड में। उसके बाद जब जर्नलिज्म चल रहा था साइड बाय साइड, मैंने फिजिक्स को नहीं छोड़ा। हालांकि सभी मुझे ये कहते थे कि आप इस फील्ड में ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, आपको न्यूज चैनल्स पे ट्राई करना चाहिए, ये सारी चीजें आ रही थी। लेकिन वही फिर से बात थी कि एक चीज पर आपने अपनी लाइफ के 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, जो 3 साल बाद सोचा था वही मैं उस टाइम सोच रही थी कि इसको छोड़ना नहीं है। ये चीजें जो आपका आपके अंदर टैलेंट होता है, या जो जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं, वो फिर भी अगर आप एंजॉय करें तो चलती रहेंगी। तो फिजिक्स सब्जेक्ट था, फिजिक्स ने मुझे बनाया था, इसलिए मैंने उसको आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि शुरुआत हर चीज की वहीं से हुई थी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। फिर उसके बाद 18 में मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ, नैनो पेरोस्काइट्स पर मैं काम कर रही हूँ। 18 to 21 का जो पीरियड था, 16 to 18 क्योंकि पहचान बनाने में टाइम लगता है, तो 18 to 21 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा,
इनमें एक अच्छी क्या कहते हैं, एक अच्छा पकड़ बन चुकी थी। जितनी भी मिनिस्टर्स की डॉक्यूमेंट्रीज और आज के दिन विधानसभा में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स कुछ भी चलता है तो वहां पर मेल वॉइस ज्ञानेंद्र जी की होती है। आई थिंक ही इज ऑफ एज 58-59, और फीमेल वॉइस स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की भूमिका की होती है। रिसेंटली अगर आपको सुना तो 112 हेल्पलाइन में आप सुन सकते हैं, उसमें सहायता सेवा में आवाजें मैंने दी हैं। फिर 18 to 21 का जो पीरियड था, क्योंकि एज इतनी ज्यादा नहीं थी, सबसे जो मेन बात मैं बताऊंगी कि मैंने कभी भी खुद को टेस्ट करना नहीं छोड़ा इस फील्ड के अंदर। तो मैंने कॉम्पिटिशन्स का मैं हिस्सा बनती रही। अभी भी फिलहाल फेब के सेकेंड वीक में नेशनल होना है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। उसका पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता, फिर स्टेट जीता। स्टेट में अभी 25,000 रुपीज अवार्ड मुझे मिला है रिपब्लिक डे से जस्ट पहले, और अब नेशनल होना है। और उससे पहले जो खेल विभाग कराता है, खेल मंत्रालय कराता है कॉम्पिटिशन्स, लगातार 3 साल से वो मैं जीत रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन आती है डिस्ट्रिक्ट पे, देन स्टेट पे, देन नेशनल पे। तो 3 साल के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो मैंने स्विच किया नेहरू युवा केंद्र की तरफ। तो इस साल नेहरू युवा केंद्र पार्टिसिपेट किया, और मैक्सिमम 29 ईयर्स तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अभी 2 साल और हैं। सो ये है कि टेस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आपके सब्जेक्ट की बात है, आपके टैलेंट की बात है, या कोई भी आपका टेस्ट है। जरूरी नहीं है, जैसे मुझे डेक्लामेशन से मेरा इंटरेस्ट था, लिखने में इंटरेस्ट था, सुनने में इंटरेस्ट था, तो आपका किसी भी चीज में हो सकता है। वही थॉट प्रोसेस वाली बात आती है। जब फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते थे ना, तो ऐसा होता था कि 2 न्यूमेरिकल करके तीसरे न्यूमेरिकल पे आते थे, नहीं सोल्व होता था, अरे हो ही नहीं रहा है, तो उसके बाद बंद कर देते थे। जनरली शुरुआत के सेमेस्टर्स में ये होता था। फिर हमने तरीका निकाला कि हम एफएम सुनते सुनते, मोबाइल वो नोकिया 1200 वाले होते थे, उनमें एफएम ही चलता था, तो एफएम सुनते सुनते हम करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने ऐसा किया कि मैं ईयरफोन लगा के और चलो करके देखते हैं, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। अगर बाई चांस रुकने का मन है तो कोई बात नहीं, एक सॉन्ग सुन लिया, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गए, तो उससे एक सिटिंग कैपेसिटी डेवलप हो गई वहां पर। तो जिस टाइम में वो सुन रही होती थी तो बहुत डिसेंट प्रोग्राम्स विविध भारती पर आते थे, तो मुझे लगता था कि कभी यहाँ पहुंचना है। तो वो जो अंदर चल रही थी चीजें कि कभी यहाँ पहुंचना है, कोई रास्ता नहीं पता था उन चीजों के लिए, लेकिन लेटर ऑन डेस्टिनी ने पहुंचाया, क्योंकि वो चीज थॉट प्रोसेस में आ चुकी थी। अब इसके बाद जो सबसे मेन बात थी वो ये थी कि जैसे सर ने भी बताया कि बहुत सिंसियर रही मैंने हमेशा। मैं अपनी इमेज के लिए हमेशा कॉन्शियस रहती थी। मेरी ड्रेसिंग सेंस और वो सारी चीजें, मुझे ये लगता था कि आपको खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। किसी आप कोई दिखावे की चीज नहीं है, आपको नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं है खुद का। आजकल मैं देखती हूँ यूथ बहुत ज्यादा मीम्स बनाने में और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का ये गोल्डन पीरियड है, इस टाइम जो आप बनना चाहते हैं उसी के बारे में खुद से बातें कीजिए, वही आप लेटर ऑन बनेंगे। और देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस चीज को ना पाएं। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, थॉट प्रोसेस का ही। यू नेवर नो कि आपको कब क्या चीज मिल जाए। कोविड जब आया तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी, अपने इंडिया ने भी की। तो जब मैंने 12th क्लास पास किया था तो मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूं, और 26 लाख उन दिनों फीस होती थी पायलटिंग के लिए। तो ना तो रास्ता पता था कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि फादर एग्रीकल्चर में थे, मदर हाउस वाइफ थी। बहुत बेसिक से फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक। ऐसा नहीं कि ये अब चलो ठीक है, अब हम तीनों बहन भाई बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल में आए तो सिचुएशंस ठीक हो गई, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा बेसिक फैमिली से थे। सो क्या हुआ कि उस टाइम सोचा था कि ऐसा बनना है। तो जब ये एजुकेशन फ्री हुई तो एनपीटीईएल स्वयं प्लेटफॉर्म पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आया मॉड्यूल्स में, और मैंने वो उस टाइम पर ज्वाइन किया। वो अब कंप्लीशन पर है, ऑलमोस्ट अनदर 6 to 8 मंथ्स लगेंगे उसके अंदर। तो वो मेरी मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा वहां से वो होगा। ठीक है, तो एक सर्कल में आप जब आ जाते हैं तो यू नेवर नो कि उस स्टेटमेंट पर आकर कि अब जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग होगा, अब फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, ये एनेक्डोट जुड़ के फ्यूचर में आपको क्या पता कहाँ से कहाँ पहुंचाते। सो आप कभी भी जो भी सोचते हैं, जो भी खुद से कहते हैं, वो हमारी लाइफ में जरूर जरूर होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो खुद से या अपने आसपास वही वाइब्रेशंस क्रिएट करें जैसा आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। एक दिन की बात मैं बताती हूँ कि
देशभक्ति पर मेरा डेक्लेमेशन होना था, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण वक्तव्य टॉपिक था, उसका विषय था। सो मैं एटलस वाला फ्लाईओवर, विजेंद्र सर को पता होगा कि सर भी सोनीपत से हैं, तो वहां पर मैं दिमाग में यही सोचते हुए चल रही थी कि देशभक्ति एक्चुअल में ठीक है, हम फील करते हैं, पेट्रियटिज्म को फील करते हैं, अपने देश के प्रति कर्तव्यों को फील करते हैं, लेकिन जिया कैसे जाता है वो मतलब दिमाग में चल रहा था। और मैं अभी की बातें हैं, थोड़े टाइम 2 महीने पहले की, तो स्कूटी से मैं जा रही थी वहां से, तो एक रिक्शा वाला वो जनगण मन गाते हुए अपनी रिक्शा को पुल पे खींच रहा था। अब मेरे दिमाग में एकदम से मैं रुकी, आगे जाके मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों गा रहे हो जनगण मन गा के? कहते इससे एक अलग एनर्जी मिलती है। सो वो एक सेंटेंस उनका कि इससे एक अलग एनर्जी मुझे मिल रही है अपनी रिक्शा को खींचने के लिए, वो देशभक्ति है, वो इंसान देशभक्ति को जी रहा है। तो जब आप एजुकेशन जहां पर भी ले रहे हैं, पहले अपनी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बाद आपका आसपास का एरिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसके बाद एक समाज के कर्णधार आप हो जाते हैं, और फिर आप अपने देश के निर्माता बन जाते हैं। तो अपने दिमाग में हमेशा ये चीज सोचनी है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे, और वो आता है थॉट प्रोसेस से। जब 2010 से 13 वाला हमारा पीरियड था, हम फ्रेंड्स बात करते थे आपस में कि 2000 जब फाइनल ईयर की बातें हैं कि तुम इसके बाद क्या करोगे, तुम इसके बाद क्या करोगे, तुम्हें क्या चाहिए, तो सब कहते थे मुझे बिजनेस करना है। हर्षित सतीजा हमारी क्लास में होता था, वो हमेशा आके मुझे बिजनेस करना है, उसके लिए बस दिमाग चाहिए। तो जब मेरी बारी आती थी, मैंने कहा नहीं, मुझे मुझे अब कुछ ऐसा अपनी कंट्री के लिए मुझे हमेशा डिवोटेड रहना है। मेरे माइंड में हमेशा ये आता था कि कुछ, क्योंकि मैं बायोग्राफीज में बहुत देखती भी थी, और जो भी नॉवेल्स होते थे किसी की लाइफ पर मैंने बहुत पढ़े हैं, तो उस टाइम मतलब वो चीजें सबकी एक इंस्पिरेशन देख देख के यूं लगता था कि जिन्होंने अपनी कंट्री को समर्पित अपना जीवन जिया, उनकी लाइफ एक अलग लाइफ थी, उनके लिए एक सम्मान आज भी जिंदा है। तो दिमाग में ये चीज आ गई थी कि हाँ, इस तरीके से जीवन जीना है कि इस देश के लिए कुछ हो, खुद से हो। तो आज जब भी कुछ भी ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसा प्रपोजल आता है, कोई भी कहीं पर भी काम मैं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज आप पैसे से तोलें, जरूरी नहीं है कि हर कदम पे आपको पैसा मिले, लेकिन लेटर ऑन जो मान सम्मान, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, वो आप लाखों करोड़ों देकर भी नहीं खरीद सकते। और रही बात, फिर से मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि आप जिस भी विषय में हैं, उस विषय पर यदि आज अपना वर्तमान खर्च कर रहे हैं, तो भविष्य में उसे छोड़े ना, क्योंकि फिर से आप देखिए नई चीज के लिए उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ती है। और जो इंसान बार बार चेंज की तरफ रहता है, चेंज इन द सेंस कि जो बेसिक चीजों को, अपने मौलिक कैरेक्टर को, अपने मौलिक स्वरूप को चेंज करता है, वो जिम्मेदारियों से भागता है। जो जिम्मेदारियों से भागता है, उस इंसान का जीवन हमेशा भेड़ों के झुंड की तरह होता है। एक भेड़ जहां जाएगी, फिर वो उनके पीछे पीछे वहां पर चलता है, और जीवन को कभी भी दिशा नहीं मिलती, और दिशाहीन जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि सफल जीवन का रास्ता संतोष से होकर गुजरता है। और संतोष, ये तो हम हमेशा स्कूल में भी हमेशा लिखा होता था, हमारे हिंदू स्कूल में सबसे एंट्री पर, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो संतोष की कमाई जो करता है, अपने आप में उसका जीवन विलक्षण हो जाता है। और इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं, एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते। मैं तो ये कहती हूँ, आपको बस सोचना होता है कि मेरे आसपास सब वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आप कोई भी उनकी जीवनी आप उठाइए, किसी की भी लिखी हुई उठाइए, तो आप उसमें सबसे पहला श्लोक यही पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये चीजें जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं लिखी हुई चीजों को, तो वो चीजें अब आप 18 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं, वो आपकी जिम्मेदारियों के लिए होती हैं। और जिम्मेदार इंसान एक बहुत ज्यादा होशियार, इंटेलिजेंट इंसान से बेहतर होता है। सर जैसे कह रहे थे कि हमारा वाला जो बैच था 2010 to 13, हमारी क्लास में हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन हमारी क्लास में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम सभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे खुद से, जैसे ये क्लासरूम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, मतलब एक अच्छा सा यू सभी अगर कोई कुछ गलत, बाई चांस किसी ने कुछ डस्टबिन नहीं फेंका, तुझे ये फेंकना चाहिए था, इस तरीके से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक रिस्पॉन्सिबल हम रहे। और वो छोटी छोटी चीजें, इसी टाइम पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, बनते हैं। पर्सनैलिटी हमारी उसी टाइम पर बनती है जब हम कॉलेज के फेज में होते हैं। उस टाइम यदि मौज मस्ती होती है ज्यादा हावी, तो आने वाला जो जीवन होता है उसमें हम वो सब नहीं पा पाते जो हमें चाहिए। क्योंकि
स्वप्न तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं, उस टाइम एनर्जी तो ऐसी होती है जैसे देश के अगले प्रधानमंत्री हमें ही बनना है। लेकिन उसके लेटर ऑन जब सच्चाई पता चलती है कि कितनी ज्यादा वेदनाएं हैं, कितनी संवेदनाओं को मार के आपको अपने लिए संभावनाएं जन्म देनी पड़ती हैं, तो जब उस फेज में आप आते हैं, जब जॉब की जरूरत होती है, जिस टाइम आपको ये होता है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो उस टाइम पर वो चीजें काम आती हैं जो आपने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में अपने टीचर से सीखी होती हैं और अपनी संगत से सीखी होती हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत मायने रखता है, और मैं बस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि मुझे जो बेस्ट फ्रेंड्स मिल सकते थे मुझे वो मिले। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के थे, फिर उसके बाद जर्नलिज्म में बने, सभी आज तक कनेक्टेड हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हाँ इनसे साथ छूट चुका है, सबसे कनेक्टेड। इवन मेरी जो नर्सरी की टीचर है, मैं उनसे भी आज कनेक्टेड हूँ। एक मन में ऐसी उमंग होती है, और ये जब चेहरे आंखों में जिंदा रहते हैं तो हमेशा परमात्मा एक ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप गलती कर ही नहीं सकते। और आज के फैसले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि आप हर समय सही सोच सकें। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि आज का फैसला भविष्य में आपके लिए सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने जीवन में दुआएं कितनी कमाई हैं। यदि आपके अपने जो आपके लिए मायने रखते हैं वो आपसे खुश रहते हैं, आपके माता पिता के चेहरे पर आपकी वजह से सुकून रहता है, खुशी रहती है, तो यकीन मानिए आपका जो ओज है, आपका जो तेज है, वो अपने आप एक ऐसी खुशबू बिखेर देता है कि सभी कहते हैं कि ये हमारा है, ये अपना है। वो उस अपनत्व को आप जन्म देने की कोशिश करें, तो अपने आप में ही एक ऐसा फिर से वही बात कह रही हूँ कि वो खुद से प्रेम करने के लिए आप ये हो जाएंगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स हमसे खुश हैं। सो जो सोचने की शक्ति होती है, अब उसको कैसे ऐसे ट्रांसफॉर्म करें कि आप ऐसा ही सोचें कि जो आपको हमेशा खुशहाली दे, क्योंकि जीवन में सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहता। पड़ाव, उलझने आती हैं, ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब लगता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। सबके जीवन में आते हैं, यात्राएं इतनी आसान नहीं रहती। और आज के दिन जैसे मेरे पास 3-3 जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं, उस केस में मैनेज करना भी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उस केस में हमेशा प्रायोरिटीज रखें कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। जैसे यदि अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप ये सोचें आपके लिए प्रायोरिटी केवल और केवल आपका सब्जेक्ट है, और इन 3 सालों के बाद आपको कहाँ एडमिशन लेना है, उस एंट्रेंस की तैयारी आपके लिए मायने रखनी चाहिए इस टाइम। दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटीज में जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे छोड़ना पड़ता है, हालातों की वजह से ये हो गया, फाइनेंशियल पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा लगता है जीवन में कि ये मुश्किल है, तो उस टाइम हमेशा ये कहें कि अगर मुश्किलें आई हैं, जितनी ज्यादा मुश्किलें होती है ना जीवन, उसके बाद उतना ही ज्यादा फल देता है, उतनी ही ज्यादा आपको एक ऐसी हाइट मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और एक मिरेकल जैसा फील होता है। तो कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। उस टाइम ये सोचना है कि अगर मुझे ऐसी मुश्किल मिली है जिसका मुझे समाधान ही नजर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स गॉड ने मुझे चुना है कि मैं अपने एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचूं जहां पर मैं इसका समाधान निकाल सकूं। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में। और डिसीजन कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रिजिड हो जाए। मैं बहुत सारे हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं मुझसे भी, तो देखती हूँ तो बच्चे एक ही चीज पर स्टिक होकर बैठ जाते हैं कि ये नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं। स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि इतना टाइम पेरेंट्स नहीं दे पाते, तो आप टारगेट जो आपके पास चूज आपने किया है, आपके पास प्लान ए सपोज आपने चूज किया है, लेकिन बी सी डी ई एफ, मैं कहती हूँ जी तक होने चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आज प्लान ए नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर होगा, उसको स्किप फॉर द टाइम बीइंग उसको पोस्टपोन कर दे, लेकिन प्लान बी अगर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए हैं, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है। तो ऐसे में हम जो चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिल सकती हमेशा। इसीलिए हमेशा ऐसा एक शेड्यूल ऐसा बना के चलें, ए बी सी डी ई एफ, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लेकिन हाँ लेटर ऑन अगर आज मैंने ये सोचा है तो इस टारगेट पर मुझे जरूर पहुंचना है। समय लग सकता है लेकिन उस चीज को छोड़ना नहीं है।
त्यागी अगर बनना है तो फिर महात्मा बुद्ध के जैसे बनो। और अगर ये सोचना है कि मुझे तो बहुत कुछ पाना है जीवन में, तो उस टाइम पर ये सोचना है कि आपको एक तरीके से एक दार्शनिक बनना है जिसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। जब दूरदर्शिता जीवन में जन्म ले लेती है तो अपने आप में ही बहुत सारे जो भी आपका एक जीवन का सकारात्मक पहलू होता है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस टाइम आप अपने उस एनर्जी लेवल पर होते हैं जब आप ये सोचते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और जब दिमाग में ये आ गया कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोके, लेकिन बशर्ते मेहनत करनी पड़ती है, खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ता है और किसी का हक नहीं मारना होता है। चालबाजी जब भी करेंगे इतना पिछड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ क्या हुआ, फिर आप ये सोचते हैं मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। जो चालाक बनते हैं उनका भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो सकता। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं खुद से खुश हूँ, खुद से सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। ऐसा ऐसा भी टाइम जीवन में आता है जब ये लगता है कि जैसे हमारा कोई भी नहीं है। कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं सबके काम आता हूँ, मेरे कोई भी काम नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में हमेशा अपने आप को ऐसे हील करें कि आप इस सिचुएशन के अंदर हैं। जिन्होंने आपकी मदद की थी उनकी वजह से आप इस सिचुएशन के अंदर नहीं है। आपने उनकी जिन हालातों में मदद की वो एक अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। एक बार की मैं बात बताती हूँ, मैं आकाशवाणी पर थी और रात को 11:10 तक ड्यूटी होती है। मेरी जो रूममेट है वो उस दिन बाई चांस मेरी हमें हमारे पास एक ही स्कूटी है वहां पर, तो वो छोड़ना भूल गई कि भूमिका ड्यूटी पर और मैं उसके पास स्कूटी छोड़ दूं। तो 11:10 पर मैंने देखा कि स्कूटी है ही नहीं, अदरवाइज वो खड़ी करके चली जाती थी। अब रात को 11:10 पर आपको जाने के लिए मिलेगा भी क्या, और लमसम 6 to 7 किलोमीटर्स का जो रास्ता था सेक्टर 14 तक। अब समस्या ये हुई कि अब क्या करूं। अब मैं घर पे फोन करूं तो घर वाले भी गुस्सा ही होंगे कि ऐसी सिचुएशन में तुम अकेले क्यों हो या इस तरीके से। तो थोड़ी दूर पर महिला थाना था। ये बातें हैं 2016 के एंड की। उसके बाद एक 2016 फरवरी बहुत बेकार फेज से गुजरी थी हरियाणा में, क्योंकि आंदोलन हुआ था, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, रोहतक गढ़ था उस चीज का। तो उसके बाद की ये बातें हैं। तो जब रात को मैं महिला थाना पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी अजीब सी नजरों से देखा मुझे कि जैसे होता है कि पता नहीं कितना बड़ा कुकृत्य कर कर आए हो और कह रहे हो कि मुझे वहां तक छोड़ दो। उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की। उसके बाद मैंने सोचा कि एटलीस्ट इस महिला थाना के बाहर जैसे पेड़ से लगे होते हैं, एटलीस्ट ये जगह सेफ तो है। मैं सुबह 4:30 बजे तक, जब तक मॉर्निंग वॉक करने वाले नहीं आ जाते, मैं वहां पर बैठी रही। और आप सोच सकते हैं कि उस टाइम कैसे कैसे थॉट्स आए होंगे दिमाग में, कि डर भी लग रहा था। जो अंदर बैठे, ठंड का भी टाइम था, फरवरी के महीने में ठंड होती है। सो उस टाइम ने, लेकिन वो जो 4, 5, 4.5 घंटे थे, उन्होंने एक ऐसा थॉट प्रोसेस विकसित किया कि आज मुझे ना तो अंधेरे से डर लगता है, मुझे ना रात से डर लगता है, ना दिन से डर लगता है। मैं कैसी भी सिचुएशन में घर से निकल सकती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे डरा सके। मतलब मैंने खुद से, इंसान सबसे पहले खुद से डरता है, मैंने खुद को जीत लिया था कि मुझे खुद से ही डर नहीं लग रहा है तो मुझे कोई भी चीज डरा नहीं सकती। तो चाहे आधी रात की बात हो, दिन की बात हो, तो डर नहीं लगता। तो इंसान जब खुद से डरना छोड़ देता है तो बहुत सारी मुश्किलें तो अपने आप आसान हो जाती हैं। तो उसके बाद, उस वाकये के बाद मुझे दूरदर्शन, आकाशवाणी, कभी दिल्ली से आना, क्योंकि खुद की गाड़ी नहीं थी, खुद की गाड़ी मैंने अभी 2020 में ही ली है। सो वो चीज एक ऐसा लेसन देके गई कि हालात कैसे ही भी हों, अगर आप सही हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में पार पा सकते हैं। और ये जो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कह रही हूँ कि अब जैसे मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, कॉलेज का भी काम होता है, और कॉलेज में भी जो भी मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े उन्हें तो पता ही है कि बहुत सारी सेल्स हैं, तो काम काफी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर रेडियो भी है, दूरदर्शन भी जाना होता है, और जो अपने प्रशासन के कार्य होते हैं वो भी देखने होते हैं। तो इन सब के बीच में पीएचडी का भी काम होता है। आप सभी की ब्लेसिंग से ऑलमोस्ट मैं कंप्लीशन पर हूँ। तो जितनी भी चीजें हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर चीजें आती है प्रायोरिटी के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में। हमेशा एक टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आप जैसे आज सुबह उठे हैं तो आपका आज का क्या काम होना है, कि आप आज ये क्लास लेनी है, ये मीटिंग अटेंड करनी है, या प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, इनसे ये बात करें। टू डू लिस्ट हमेशा अपनी तैयार रखें।
तो उसमें ये है कि आप एक टाइम फेज सीख जाते हैं। जब टाइम फेज सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा जेस्चर डेवलप हो जाता है कि आप स्ट्रीमलाइन करते हैं चीजों को, स्टैक में चलती हैं फिर कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये, और वो काम टिक मार्क होते होते चलते जाते हैं। दिमाग पर बोझ नहीं होता है, और जब दिमाग पर बोझ नहीं होता है तो आप एक अलग ही उमंग में, एक अलग ही उत्साह में काम करते हैं, अलग ही जोश में काम करते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में कि आप कितने काम कर सकते हैं और कितने मैनेज कर सकते हैं। तो उस केस में 1 मिनट सर, शायद लाइट चली गई है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो उस फेज में जब टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, सबसे अहम रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का कि आप चीजों को करने से लेते कैसे हैं, क्योंकि एक एक काम बहुत कीमती है, घर का भी काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सो उस केस में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे, केवल आपके पेरेंट्स, और कोई नहीं समझेगा। तो अपने पेरेंट्स का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, अपने सिबलिंग्स का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनका भी आपको समझना जरूरी है कि कुछ भी सिचुएशन आए कि हाँ इसके लिए ये काम जरूरी है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाय फीलिंग्स आप जो भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वो आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। जिसको भी आपकी जरूरत है आप उस टाइम पर उनके साथ जरूर खड़े हों, लेकिन जब आपको लगता है आपके लिए काम जरूरी है तो आप काम ही करें। और काम करने में भी हद से गुजरना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि आज आपने सपोज कोई भी चीज है, एक स्क्रिप्ट ही लिखनी है सपोज, ठीक है, उस स्क्रिप्ट लिखने में भी आपको अगर 2 सेंटेंस लिखने हैं तो उन 2 सेंटेंस के लिए पहले 50 सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होती चीजें। तो हमेशा पढ़ने की, जब आप एजुकेशन से जुड़ चुके हैं तो आप पढ़ने की हैबिट डालिए। आप अगर ये सोचते हैं कि आज का दिन आपने नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं, हर रोज पढ़ने का मूड किसी का भी नहीं होता, हर रोज आप हर चीज कर भी नहीं सकते हैं, खुदा नहीं है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे अगर आपके दिमाग में है तो उन चीजों को आप कभी ना कभी तो जरूर कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किन को आदर्श मानते हैं, किन को पढ़ते हैं, किन शब्दों का आप बोलने में इस्तेमाल करते हैं। कई बार देखा हमारी क्लास में, टीचर्स यहाँ पर हैं लेकिन मैं स्टिल मैं कहूंगी कि एक बॉयज जब आपस में बात करते थे तो एक शब्द वो यूज करते, तो मैं हमेशा एकदम से मैं डांट दिया करती थी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया था कि यदि भूमिका बैठी है तो कोई भी इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं कर सकता था वहां पर। तो वो एक आपका ओरा ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने किसको किन शब्दों को चूज करना है वो आप डिसाइड करेंगे, वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा। यदि कोई और डिसाइड कर रहा है, इट मीन्स आप किसी को लिबर्टी दे रहे हैं खुद पर हावी होने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। और जब तक आप खुद से डोमिनेट नहीं करेंगे तो आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स आप कैसे पूरे कर सकते हैं। और यही फेज होता है 18 to 30 ईयर्स। इन सालों में आप जो कर जाते हैं ये भविष्य की नींव बन जाते हैं, फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग आप उड़ान भरते हैं। सो ऐसा कि इस टाइम पर जब आप यूथ वाली एज में हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि बोल क्या रहे हैं और सुन क्या रहे हैं। तो वो थॉट प्रोसेस में आपके वही चलता है। एक सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसमें वाइब्रेशनल थ्योरी जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो इतनी मजबूत होती है कि आज यदि आपने ये सोचा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, या सोचा भी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में है, तो वो चीजें जरूर 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 होती हैं। जब 15 to 18 वाला फेज था, मेरा पीएचडी में कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था। एक फेलियर जैसा महसूस हो रहा था कि मैंने जिस सब्जेक्ट को जिया है मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा। कहीं पर एंट्रेंस नहीं निकलता था, कहीं पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता था, कभी गाइड ऐसे नहीं मिलते थे कि जिनको देख के लगे कि इनको गाइड चूज करना चाहिए, कभी गाइड ऐसे मिल जाते तो वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे होते थे। तो 3 साल इस प्रोसेस में निकले। अब उस 3 साल में मैंने जर्नलिज्म किया, और उन 3 सालों में ही मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं कि पीएचडी नहीं करनी है, स्विच कर लो, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आ जाओ या इस तरफ। नो, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फैसला करने से पहले 50 बार सोचिए, 100 बार सोचिए, लेकिन एक बार जब डिसाइड कर लिया है कि मेरा ये ड्रीम है तो फिर उसके पीछे लग जाइए, पागलों की तरह लग जाइए। वो चीज कभी ना कभी जरूर होगी, देर से ही सही लेकिन जरूर होगी। और जो भी मेरे जूनियर्स इस समय सुन रहे हैं उनको बस इतना ही मुझे कहना है कि आप सभी
लाइफ में, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर होता है, और वो स्पेशलिटी आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या है। आपका माइंड क्रिएटिव है, आपका माइंड जैसे कुकिंग में किसी का दिमाग चलता है, किसी का स्पोर्ट्स में चलता है, किसी का लिटरेचर में चलता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक ऐसे देश के अंदर हैं जहां समाज बहुत मायने रखता है, जहां पर संविधान बहुत मायने रखता है, जहां पर कल्चर बहुत मायने रखता है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मायने रखते हैं। तो हमेशा आपकी जो अप्रोच है खुद को लेके वो वही होनी चाहिए जो इस सारे सिस्टम के साथ जेल कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे तो यहाँ पर हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जर्मनी में आज के दिन ये ट्रेंड हो रहा है, 20 साल बाद यहाँ पर वो चीज ट्रेंड करेगी। तो 20 साल बाद ट्रेंड करेगी, लेकिन उन 20 सालों में आप क्या करेंगे? आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पेरेंट्स की, उनका आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस टाइम पर पूरी नहीं होती तो वो कुछ टाइम बाद आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। तो फ्रस्ट्रेशंस में कभी भी इंसान अच्छा तो नहीं सोच सकता एटलीस्ट, और फिर वो दूसरों के लिए भी वो नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा सिंपल सा फंडा मेरा जो हमेशा रहा कि इंटेलिजेंट, होशियार बनने से ज्यादा अच्छा है कि आप जिम्मेदार बने, और जब जिम्मेदार बनते हैं तो इंटेलिजेंसी लेवल अपने आप ग्रो करने लगता है। तो आप सभी को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मुझसे कोई भी हेल्प यदि आपको चाहिए, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन कम टू आवर कॉलेज, और किसी भी तरीके से आप मिल सकते हैं। विजेंद्र दहिया सर सभी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ले सकते हैं। और मेरे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आप सभी को नमन करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी एजुकेशन दी, क्योंकि एजुकेशन ही जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। और मेरे फैमिली से मैं पहली हूँ, पूरे परिवार से, चाचा ताऊ मामा बुआ सबसे, आई एम द फर्स्ट वन हु इज परसुइंग पीएचडी। इवन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स मैं फर्स्ट थी बीएससी तक पहुंचने वाली भी, फिर एमएससी भी मैंने ही किया। तो आपने, मैं कहूंगी कि मेरे टीचर्स ने मेरा वंश बदल दिया है। सो आप सभी को दिल से सैल्यूट, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you, Bhumika, for such an inspiring talk. थैंक यू सर। Now, I would request Dr. Monica Gambhir. I think if someone wants to say something, I welcome. Yes, I wish to speak, Bhumika. I am Dr. Geeta Saxena from Botany गुड Department. आफ्टरनून मैम। और बस मैं यही कहूंगी, मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितना ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ तुम्हारे। यू आर रियली मोटिवेशनल स्पीकर, तुम्हें तो टेड टॉक देना चाहिए। और Thank you, इतनी ma'am. सच्ची Thank you. इंसान, इतना अच्छा हृदय, इतनी मधुर आवाज, इतने जीवन के अनुभव, मतलब मैं बयां करती जाऊं और अंत नहीं है। मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ तुमसे, कुछ कहना नहीं है। मैं इतनी प्राउड हूँ कि हमारे ऐसे बच्चे, सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है, तुम तो एकदम ही गजब, हाईली सेंटली एंड वेरी मच एक्सपीरियंस्ड गर्ल इसी एज में बन गई हो। आई डोंट नो, तुम्हारा तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सो विश Thank यू you. ऑल द बेस्ट। आप सभी की ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम। मैं भी बहुत इससे एग्री करती हूँ। गीता मैम ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया, इतना धारा प्रवाह बोला और सब कुछ मन से था। और वही मैं भी एग्री ये भी कर रही हूँ, सभी कर रहे होंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी इवॉल्व है तो ये बच्ची कहाँ पहुंचेगी। एंड हमारा नेशनल प्राइड है ये तो, है ना। और इसी ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। So there is no limit to your accomplishments. You are a great and very sound role model for not only the children, for all of us. We are very, Thank very you very much, proud ma'am. and really seeing people like you, we can say our college is really great. And और इतने प्यार से वापस आई है, it's homecoming. So it's like she is not even having any kind of attitude कि मैं ये बन गई या वो बन गई. No, ma'am, She no. wants कि दिख रहा है कि आप चाहते हो कि सब लोग यहाँ से सीखें, अभी वाली जो जनरेशन है, और इससे भी आगे जाएं। वो भी आपकी सक्सेस है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कहती हूँ, मोनिका मैम हमें पढ़ा रहे होते थे ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी आगे जाएं। तो जब मैं क्लास में होती तो मुझे हमेशा उनकी याद आती। मैं अपने हर एक बैच को कहती हूँ
मगर मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे बहुत ज्यादा आगे जाओ, बहुत कुछ बनो, हमसे ऊपर होगी तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। तो उस सेंटेंस का मतलब ना अब समझ में आता है कि मैम ने क्यों कहा, तो क्या खुशी मिलती है। May God bless you. And थैंक wishing यू, you more power, थैंक यू, more थैंक and यू। more. Go on. कभी मत रुकना. Thank you. Congratulations, Bhumika. There is anyone from the students who wants to ask anything? Bhumika से अगर आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, तो you are welcome. You can unmute yourself and ask. There are no questions it seems. Brijendra sir, हम आगे बढ़ सकते हैं. इनफैक्ट हमारे 3 एलुमनाई स्टूडेंट्स और जुड़े हुए हैं हमारे साथ. Yes, आई एक तो थिंक दीपशिखा है। दीपशिखा है, विशाल विशाल। खंडेलवाल है और निशांत है. अगर ये तीनों अपना वीडियो ऑन कर लें तो बड़ा अच्छा लगेगा. Vishal, are you there? Yeah, Yes, Vishal. Vishal is I am there. now. Yeah, Nishant. I'm. Nishant. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Hello, Nishant. Hello, ma'am. हेलो निशांत। Hello. Hello, Bhumika ma'am. Actually, it's very inspiring, and I am doing PhD now in a very great university in Saudi Arabia, and in nano fabrication. Oh, wow. I am working in device fabrication. I am doing. I generally make wide bandgap transistors. So every day I work like work like Okay. hell in clean room. So today is my holiday. Sir, kindly so share that's why- Vishal's such details. I request. Okay. Yeah. Yeah, I'll connect both of you. Yes, Okay. yes, ma'am. Definitely. It will be a great help to me. Yeah. Yeah. So in my lab, actually, we work on material growth. We have many systems just like MOCVD, PLD, sputtering, many things. And except this, we go for the device fabrication. Mainly, I'm working on transistors. So will help in future generation expanding Moore laws in future. So let's hope. All the best. Yeah. Nishant. Hello, everyone. As you all know, my name is Nishant, and currently I am in TIFR, Department of Nuclear and Atomic Physics. And currently I am working on INO, some experiments related to INO, that Indian-based neutrino observatory. And currently I am analyzing some rock samples that are at the site of INO and some other radioactive sites. So, and this is it. And one thing that I would want to add, that before joining TIFR, I just joined TIFR in December, in the end of December. And before that, I joined IISc Bangalore for PhD. And I always wanted to have a career in nuclear physics, but unfortunately in IISc, I was admitted in the Department of Condensed Matter Theory that I never really liked, but I just got admitted because I didn't have any other choice. So, but right after 6 to 7 days, I resigned. लाइक कि नहीं, मैं अपने इंटरेस्ट के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा. तो ये एक ज़रूर एक्सपीरियंस, हालांकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक लाइफ में, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस ये है कि कभी भी जस्ट जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसमें सेटल नहीं होना, जस्ट बिकॉज कि इंटरेस्ट वाली चीज़ तुम्हें उस टाइम पे नहीं मिली. तो यही एक लर्निंग है. और अभी मेरे को जैसे 1 से ज़्यादा महीना हो गया यहाँ पे काम करते हुए, और मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ यहाँ काम करते हुए. और इवन वीकेंड पे जो कि नॉर्मली ऑफ होता है, मैं अभी भी लेबोरेटरी में ही हूँ. तो ये एक मेरी शेयरिंग है कि हाँ. और जैसे कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है कि मैं और विशाल सेम बैच से हैं. हमने 2015 में ज्वाइन किया था, और 2015 to 18 हम लोग कंसिस्टेंट, और इवन पूरे बैच के मैं और विशाल एक साथ ही टॉपर भी थे. और जब हम लोग फाइनल जो अवार्ड्स के साथ में एक कॉलेज से बुक मिलता है, तो फाइनल बुक हमने देखा तो उसमें सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट लिखे हुए थे कि हाँ सारे डिपार्टमेंट के टॉपर के CGPA. और जब हमने देखा 2015 to 18 बैच के पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट CGPA मेरा और विशाल के थे, और हम उसके लिए प्राइजेस भी मिले. और मुझे उससे पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास आज तक कभी कुछ नहीं मिला हुआ था. तो वो एक प्लेटफॉर्म सेट था कि हाँ, कि अब मैंने एक्चुअली फील किया कि हाँ टॉपर होने पे भी ऐसा फील होता है. तो
एक बहुत जीरो स्लोप से लेके और यहाँ तक, हालांकि इतना इतना ऊपर नहीं है अभी भी, लेकिन हाँ ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है मेरी तरफ से ऐड करने के लिए। तो यही था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे बहुत सारे टीचर्स मैं पर्सनली अभी भी अटैच हूँ। मेरे को जैसे भी कोई नया अपडेट होता है, मैं नम्रता मैम को, शिवा मैम को बोलता हूँ कि मैम मैं अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने, और इस मीटिंग के बाद मैं उनसे 1-to-1 3 से 4 साल बाद ऐसे मिल रहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, और थैंक यू फॉर द होस्ट। एक इंसिडेंट मुझे भी याद आ रहा है मैम, और सबसे पहले तो एक अच्छी खबर मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारे बैच से हम 2 टॉपर थे, गणेश और मैं, सेम मार्क्स के साथ। तो गणेश गुर्जर ने कल ही अपना पीएचडी सबमिट किया है जेएनयू में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। उसका थ्योरेटिकल फिजिक्स पर था। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। और Good. उस साल कॉलेज में गर्ल्स में जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर था, हर एक कॉलेज की लड़की को स्मृति ईरानी जी ने ऑनर किया था, तब वो मिनिस्टर थी। सो उस टाइम पर मेरा गणेश ने मुझे कहा था कि हम फर्स्ट हम दोनों हैं, गर्ल होने का फायदा तुझे मिला है। तब स्मृति ईरानी जी ने ऑनर किया था हमें। तो एक बेस्ट मोमेंट था वो भी, बहुत अच्छा। डू यू हैव द पिक? कोई मैम, पिक है वो वाली? नहीं नहीं, क्योंकि उस टाइम मोबाइल मेरे पास वो था, टिक टेक नोकिया 1200। नहीं नहीं, तो वो कोई पिक खिंची होगी नहीं नहीं, तो वो you did एबीवीपी not वालों get. ने किया था कार्यक्रम। सो कॉलेज के इनके पास जो ये प्रेसिडेंट या इस रिकॉर्ड में हो तो मैम शायद मिल सकती है। ओके, Women's Day पे अदरवाइज जी हाँ जी। 8 अदरवाइज मार्च नहीं होती। उस टाइम कुंद्रा सर थे, एसके कुंद्रा सर प्रिंसिपल थे उस टाइम। सर ने भी बहुत कोऑपरेट किया। हाँ। अच्छा सर जी। नमस्ते मैम। Anyone else? नमस्ते दीपशिखा, कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप सब कैसे हो? हम लोग ठीक हैं। तुम तो भूमिका के जूनियर हो। यस मैम, मेरा सुपर जूनियर 2 मैम। साल। अच्छा, 2 साल। मैं अभी Two भूमिका दी से थोड़े दिन पहले ही फोन पे बोल रही थी कि दी मुझे आपको सुनना है। मैं जब भी परेशान हो जाती हूँ, थोड़ी सी भी नई लाइफ है तो मैं दी को फोन कर लेती हूँ, बट मैं कहा दी मुझे सुनना है आपको। अब कल सर का स्टेटस देख के मैंने बार बार कैलेंडर चेक किया, 29 तारीख कब है, 29 कब है। बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन थैंक यू करके, दीपशिखा, आप थैंक सबको यू। सुन के, आप सबके साथ जुड़ के। आना तो मैं कॉलेज भी चाहती थी पर अभी स्थिति नहीं है। थोड़ी टाइम बाद पक्का आऊंगी। नहीं, यू और पीपल दी आर को मोस्ट वेलकम। कॉलेज तो तुम लोगों का ही है, हम लोग तो हमेशा वही है तुम लोगों के लिए, कभी भी आओ। इनफैक्ट जरूर मैम। हाँ, ये नहीं होता कोविड तो वहीं पर करते ये सारा हाँ हाँ, प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं मैम, दीपशिखा। जरूर आएंगे। ये एक हाँ। जैसे हम यहाँ कॉलेज में अलुमनाई मीट कराते हैं ना, तो जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं तो कहते हैं हमें माइके जैसा फील आता है, ये फील हमें भी लेना है। हाँ, बिल्कुल। या एग्जैक्टली। निशांत एंड विशाल, मैम मैम तुम्हारा भी नंबर मैम रेडी फिर है। फिक्स डेट कब की होगी? फिक्स डेट कॉलेज की ये बता दीजिए, मतलब फिक्स्ड कब खुलेगा? बेटा ये कौन, ये विशेष गौड़ ने पूछा ये क्वेश्चन। हाँ जी मैम, ये बेटा ये दिस इज द इन द हैंड ऑफ द अथॉरिटीज, नॉट इन आवर हैंड्स कि कॉलेज कब खुलेगा कल नहीं खुलेगा। And more depends on virus, how it behaves. It's Exactly. really out of our hand to Okay. decide a fixed date. Okay. Okay, I think now I should proceed forward, and now I will request to Dr. Monica Gambhir for official vote of thanks. Good morning, everyone. It is such an honor for me to get an opportunity to thank you all. On behalf of the Alumni Association of Swami Shraddhanand College and the entire supporting team, I extend my heartfelt thanks and best wishes to our alumnus, Ms. Bhumika Sharma, who spared some time from her busy schedule and enlightened us with her precious views on personality development. I really hope, Bhumika, that students will get inspired by your achievements in academics as well as in other activities at such a young age. I would like to express my sincere gratitude to our respected principal, Sir Professor Praveen Garg, for providing constant support and inspiration and giving us an opportunity to organize such talks. With his relentless efforts and vision, our college is achieving new heights of academic excellence. Thank you, sir, for always being with us. I also extend my gratitude to the entire Alumni Association, especially convener of the Alumni Committee,
Dr. Archana ma'am, If who it's is getting boring, can we leave if it's our choice? yes, you can leave. Beta, please leave. Vishesh, please leave. Thank you, Beta. So I extend my gratitude to the Dr. Archana ma'am, who is the pillar of strength behind organizing such an insightful series of talks, even amidst the pandemic. And also Professor Namrata ma'am for her leading supervision and inspiration at every point in the organization of such talks. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues. So I would also like to thank the entire supporting team, especially Bijinder sir and Akansha ma'am. Finally, and most importantly, I am thankful to all the students and faculty members for attending the talk today. We thank you for being with us this time, and it has been a great pleasure to be with you all. Thank you very much. Thank you very much, ma'am.